آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی سلامتی اور آپ بڑے پیارے ہو اور خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ آپ کی سوچ سے زیادہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا مجھے اتنا پیار کرتا ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کے آپ کو پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسا ہمارا رحم سے فضل سے بھرا ہوا خدا ہے اور اس لیے ہمارے دل خوشی سے بھی بھرے ہیں اور شکر گزاری سے بھی بھرے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم شادمانی کرتے ہیں، ہر حال میں شادمانی کرتے ہیں، اس لیے ہم ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہے اور خوشی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں خداوند ہے وہاں شادمانی اور خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور ہم نکالیں خدا کے پاک کلام میں سے پچھلے اتوار کی عبادات میں جو ایک خاص موضوع ہم نے شروع کیا اور خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد فرماتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے اور وہی سکھانے والا ہے اور وہی ہمیں اچھی خوراک مہیا کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ ہم نکالیں گے غزل و غزلات کی کتاب مقدس صفحہ 656 پر اور اس کا دوسرا باب 4 5 دونوں آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہم اس موضوع پر خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ He brought me to the banquet hall۔ آج بھی اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے اس کا جو 14واں حصہ ہے، پارٹ 14، اسے جاری رکھیں گے کہ آج خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اتوار کی پچھلی عبادات میں ہم نے دیکھا اور ہم نے شروع کیا کہ کلیسیا ایک دلہن ہے اور خداوند یسوع مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ یہ بھی ایک روحانی رشتہ ہے، کلیسیا اور مسیح کا۔ تو ہم پچھلے اتوار کی عبادات میں غور کر رہے ہیں۔ کسی کو یاد ہو کہ دلہن کے لیے کیا کیا دلہا مہیا کرتا ہے؟ تو کسی کو یاد ہو کہ کیا چیز مہیا دلہا کرتا ہے؟ اس پر ہم نے غور کیا، علامتی طور پر اس کے روحانی معنی ہم نے جانے۔ ہاں جی، کیا سیکھا تھا؟ رنگ، ویڈنگ
नहीं, पिछले इतवार वेडिंग रिंग दूल्हा ने पेश किया, क्योंकि कलीसिया उसकी क्या है? दुल्हन है। और रिंग के बारे में हमने चंद बातें सीखी, पिछले इतवार की बताएं कि क्या खुसूसियात हमने सीखी, क्या अलामती तौर पर जो रिंग है हमने रूहानी मानों में सीखा। किसी को याद है? मोहर भी करना, इख्तियार भी है, वेडिंग रिंग। और क्या था पिछले इतवार में? पिछले इतवार में था कि वेडिंग रिंग वेडिंग फिंगर में पहनाता है। थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जो नहीं भी आए तो वो भी सुन लें। वेडिंग रिंग वेडिंग फिंगर में पहनाता है, और वेडिंग फिंगर जो है ये चौथी उंगली है। आपने देखा होगा कि दुनियावी लिहाज से भी जब दूल्हा दुल्हन को रिंग पहनाता है तो वो इस चौथी उंगली में पहनाता है, क्योंकि ये जो उंगली है इसका डायरेक्ट ताल्लुक या रूट जो है वो दिल के साथ होता है, बाईं तरफ। ठीक है, तो हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब हमें रिंग पहनाता है, और अलामती तौर पर हमने ये सीखा कि उसकी कलीसिया उसके दिल के करीब है, दूर नहीं है। वो इतना कलीसिया को, इतना ईमानदारों को प्यार करता है कि आप उसके दिल के क्या हैं? करीब हैं। अब आज हम जो वेडिंग रिंग है उसी के बारे हम और आगे बढ़ेंगे कि जब जब दूल्हा हमें यानी कलीसिया को वेडिंग रिंग देता है, बरकतें देता है, हमने बहुत सारी बरकतें सीखी। तो अब कलीसिया का काम उस रिंग के बारे में क्या है? बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है कि आओ हम खुशी करें, बरा की शादी आ पहुंची, शादी का जिक्र है, आ पहुंची है। ओके, और उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है, और उसको चमकदार और साफ मुहीन कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है। और मुहीन कतानी कपड़े पहनने से मुकद्दसों की रासबाजी के काम मुराद है। दुल्हन को, बीवी को कहा गया कि आओ खुशी मनाएं, क्योंकि उसको चमकदार और साफ और महीन कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है। जब दुल्हा ने अंगूठी दी है उसे ले लें, अगर हीरे की भी दी है, क्योंकि हमारा दूल्हा बहुत रिच है, बादशाहों का बादशाह है, और हमने सीखा कि प्योर गोल्ड की उसने हमें रिंग दी। ये भी हमने सीखा इसके मानी क्या है। तो आपको यह तजर्बा होगा, अगर हीरे की भी अंगूठी हो और गोल्ड की भी अंगूठी हो, आपने जवाब देना है। कुछ देर बाद उस पर गर्द पड़ के उसे चमकाने की जरूरत होती है या नहीं? जी, पॉलिश कराने की जरूरत होती है? यस, होती है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं
ये अगरचे रूहानी तौर पर हम सीख रहे हैं, जो रिंग है उसकी जो चमक है, पॉलिश है, अलामती तौर पर हम सीखते हैं। तो तीमुथियुस का दूसरा खत और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत हम अगर पढ़ें, निकालें मेरे साथ। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। और बहनों ने बताया है कि अगर गोल्ड का जेवर भी हो या कोई अंगूठी भी हो या हीरे की भी हो तो उसे पॉलिश करने की क्या होती है, जरूरत होती है। यस, लिखा है, इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। खुदा की उस नेमत को, खुदा की बख्शिश को, उस गिफ्ट को जो दुल्हा अपनी कलीसिया दुल्हन को देता है, उसे क्या कर, उस गिफ्ट को, उस नेमत को, उस बख्शिश को क्या कर, चमका, पॉलिश कर। इसका मतलब यह है। और बाइबल मुकद्दस में जो खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है, नेमत बख्शी है, हमने उसे पॉलिश भी करना है। लेकिन पॉलिश करने के लिए 2-3 चीजें बड़ी ही गौरतलब हैं। एक दफा मेरी वाइफ मिस यास्मीन फिदा कोई जेवर या अंगूठी थी, ये मैं भूल गया क्या चीज़ थी, तो उन्होंने पॉलिश करवानी थी, क्योंकि वाकया ही बहनें ज़्यादा जानती हैं कि जेवर भी हो तो उसे पॉलिश करवाने की। तो मैंने कहा कि किसी सुनार को दो और पॉलिश करवाओ। तो बहनें जानती हैं, मेरी बीवी ने कहा कि भाई ये बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने क्यों? उसने कहा कि कुछ सुनार ऐसे होते हैं कि वो पॉलिश करने के चक्कर में जो पहला सोना होता है ना, वो भी उतार लेते हैं, बड़ी छेला देंगे। तो इससे अच्छा है कि कोई लिक्विड, कोई चीज़ हम घर में ही लेके उस क्या कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं। तो ये ऐसा कभी हुआ बहनों को तजुर्बा कि पॉलिश करने के लिए आपने दिया तो पॉलिश के चक्कर में उन्होंने क्या किया, सोना ही उतार लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आई। तो खुदा ने जो गिफ्ट आपको, दुल्हा ने जो गिफ्ट आपको दिया, पहली बात उसमें यह है कि उससे पॉलिश और चमक पैदा करने के लिए किसी सच्चे ध्यानदार सुनार के पास जाना चाहिए। ऐसे सुनार के पास ना जाएं कि जो आपकी पहली पॉलिश और पहली चमक वो भी उतार ले, ऐसा जनाब रगड़ा दे। और आसान ज़बान में सिखाता हूँ, जिस तरह कहते ने नीम हकीम हकीम ही है, इस तरह पॉलिश करने वाले सुनार जिनके पास हम जाते हैं कि पॉलिश हो जाएं और हम तरक्की करें और हम बढ़ें, अगर सही उस्ताद और खादम और सुनार और पास्टर
के पास नहीं आएंगे अगर आप नीम हकीम और बददयानत सुनार के पास जाएंगे जिनको रहम नहीं होगा। वो पहली पॉलिश भी और आपका सोना भी उतार लेगा और आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए हिजकियेल नबी की किताब में खुदा कहता है इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस है कि वो मेरी भेड़ों की ऊन भी उतारते हैं। ये बाइबल में लिखी बातें हैं। ऊन भी लेते हैं, दूध भी पीते हैं, यहां तक ज़बा भी कर देते हैं, लेकिन एक लफ्ज लिखा, अफसोस क्या है कि वो ऐसे चरवाहे मेरी भेड़ों को चराते नहीं हैं। वो खाना मुहैया जो चाहिए नहीं करते। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह यीशु मसीह के बारे ये लिखा है कि वो मेरा चौपान है, मुझे हरी हरी चरागाह पे चराता है। हमने, कलीसिया ने, दुल्हन ने गौर करना है। अगर जो खुदा ने बख्शिश की नेमत दी, अगर चाहते हैं पॉलिश हो, चमके, तो फिर ध्यानदार सुनार के पास जाना चाहिए। उस सुनार के पास ना जाएं जो छोड़े लाए, जिसको भेड़ों पर तरस भी ना आए। सिर्फ ऊन ले आओ, दूध भी लाओ और तुहानू ज़बा भी कर देंगे, लेकिन चारा असल नहीं देते। इसलिए कलीसिया को, इसलिए उसकी दुल्हन को, इसलिए ईमानदारों को ये जानने की ज़रूरत है कौन सा सुनार है जो पॉलिश करे, चमके। हम, हमारे अंदर जो बरकतें हैं वो चमकें, और ये ना हो कि जो कुछ हमारे पास है वो भी ख़त्म हो जाए। ये गौर करना दुल्हन का फ़र्ज़ है कि वो गौर करे। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है, जो नेमत मेरे हाथ रखने से तुम्हें मिली है उसे क्या कर, चमका। उसे हमने चमकाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज भेड़ों को समझने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है कौन सा चरवाहा दयानतदार है, कौन सा चरवाहा अच्छी खुराक देता है, कौन सा चरवाहा जो मेरे अंदर है बरकतें हैं उसे और ज़्यादा मजबूत करता है, बढ़ाता है, और कौन सा चरवाहा या छोड़े लांदा है। लेकिन भेड़ा है बेचारियां, भेड़ा ने वो भेड़ चाल है ना। मैनू किसी ने पूछा, उस्ताद जी भेड़ चाल की हुंदी है? असी भेड़ा ही हाँ। मैं क्या ओके, मैं क्या भेड़ चाल इनू कहंदे ने। एक भेड़ ने आंदे आंदे गड़े च छलांग लगा दी, तो दूसरी भेड़ ने क्या ला भी, भी काम चंगा ही, उन्हें भी खड़प छड़प छड़प छड़प। एक भेड़ ने गड़े च छलांग लगाई और दूसरी भेड़ ने भी की किया, ना ना देखिया नहीं क्या गड़ा, उन्होंने भी की किया, चढ़ल दड़ल दड़ल। तो किसी को पूछो भी गड़े में क्यों छलांग लगाई है, भी उन्हें भी तो लाई है ना, मैं ला ली है तो क्यों लाई है, उन्हें भी लाई है। तुसी क्यों छाल लाई है, गड़े च क्यों चले गए, यो भी तो गड़े च ने ना, असी भी गड़े च चले जावांगे तो कोई गल नहीं, सानू की फर्क पैना। ये है भेड़ चाल।
लेकिन भेड़ चाल छोड़ के कई भेड़ा ज्यादा खुदावंद की आवाज को क्या करती हैं, सुनती हैं कि नहीं, और पीछे चलती हैं कि नहीं, और गैरों की आवाज सुनती हैं। ये भी लिखा है। मेरिया बेवकूफ ही नहीं भेड़ा होंदियां, अकलमंद ही। क्योंकि मिसाल जो दी 5-10 कुंवारियों की, तो कितनी बेवकूफ थी, लेकिन फिर अकलमंद कितनी थी। ते 10 की 10 क्या थी, है कुंवारियां 10 ऐसा, ईमान भी रखती थी और यीशु मसीह की आमद का इंतजार भी करती थी। हैं 10 कुंवारियां थी, इंतजार करती थी, ईमान यीशु मसीह पर है, इंतजार भी करती थी। ओके, मसले भी शुरू में जलाई, तो फिर भी उन्हें क्या कहा है, बेवकूफ। लेकिन 5 कुंवारियों को क्या कहा, अक्लमंद। खुदा ने हमें हिकमत, दानिश और अकल से भी क्या किया है, मामूर किया है। भेड़ा ने रिया, एक बंदे ने गीत बनाया सी, भेड़े कचजिए नहीं तेनू चज कदों आना, मन लै कहना, मन लै कहना। मैं कही भेड़ा नू सारी उम्र चज नहीं आना, भेड़े कचजिए नहीं तेनू चज कदों आना। मैं उदों ही आएगा जो दूल्हा आ जाएगा, तो फिर दरवाजे खटखटानगियां बेवकूफा। हैं कि हमारे लिए क्या कहा दरवाजा को, तो अगों जवाब किया आएगा ना, दरवाजा बंद। इसलिए बहुत सेंसिटिव है। हंसी अपनी जगह, लेकिन सीरियस बात है। जो खुदा ने नजात दी है, फजल किया है, बख्शिश की है, नेमतें दी हैं, वो और ज्यादा खुदा का जलाल जाहिर करें, उनमें और ज्यादा चमक पैदा हो। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम निकाल लें, एक और आयत पढ़ लेते हैं कि एक तो ध्यानदार सुनार के पास जाएं ताकि वो पॉलिश करे, और दूसरी बात हम निकालें और पढ़ लें मत्ती की इंजील मुकद्दस 5वां बाब निकाले मेरे साथ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 5वां बाब 15वीं और 16वीं आयत, दोनों आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, गौर से सुने। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दानों पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी यानी तुम्हारी चमक, रोशनी, शाइनिंग आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कोई चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखता, फिर रोशनी आएगी, चिराग बुझ जाएगा। चिराग दान पर रखेंगे तो रोशनी है। ये खुदा का असूल है। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़े, लिखा है
کہ खुदावंद यीशु मसीह सातों चिरागदानों में क्या करता है? फिरता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। वो चिरागदानों में क्या करता है? फिरता है। सातों कलीसियाओं के बारे में जब पैगाम मिलता है तो सातों चिरागदानों में दुल्हा यीशु मसीह फिरता है। अगर तो चिरागदान पर हम चिराग जला के रखते हैं तो दुल्हा जो है खुदावंद यीशु मसीह चिरागदानों में कलीसिया में फिरता है, आता है, घूमता है, मदद करता है कि अगर रोशनी कम हो गई है तो उसका गुल काट के और ऑयल दे देता है और रोशन रहती है। तो जो सिस्टम में नहीं, जो कलीसिया में नहीं, जो कलीसिया के थ्रू नहीं, उनकी रोशनी में चमक नहीं आती, बल्कि वो आस्ता आस्ता, वो क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बुझता बुझ जाता है। तो रोशनी और चमक लाने के लिए, नेमतों को चमकाने के लिए चिरागदान पर क्या करना है? चिराग रखना है। और फिर बाइबल मुकद्दस में क्या मैंने आपके सामने पढ़ा है कि चिराग दान पर जब चिराग रखोगे तो पहली बात क्या है? उससे सब, ये गौर से सुने, उससे सब, आगे क्या है? शाबाश, मैंने सीखा कि आपको आपकी तवज्जो हो। उससे सब घर वालों को क्या मिले? ये चमक, ये बरकतें, ये नेमतें, ये बख्शिशें, ये गिफ्ट्स जो दूल्हा ने दिए हैं। दूसरी बात ये सीख रहे हैं, हमने उससे रोशन करना है, शाइन करना है, चमकाना है। और सबसे पहले घर में रोशनी उसकी हो। इसका मतलब है घर में चमक हो, घर के लोगों में चमक हो। पहला इसका स्टार्ट ये है, घर में चमक हो, घर में रोशनी हो, घर में मोहब्बत हो। जो बरकतें, जो नेमतें, जो बख्शिशें हमें मिली है, जो खुशी हमें मिली है, घर में चमक उसकी पैदा हो। ये ना हो कि हम बाहर चमक दिखाते रहें और घर में कोई रोशनी, चमक, कोई खुशी और मोहब्बत ना हो। कई लोग देखा होगा आपने, बाहर बड़ा हंस देने तो कार मुंह मरोड़ के बैठे होंगे, तो कहते ने हवा आ गया जी, लुक छुप जाना। घर में रोशनी हो, घर में चमक हो, जो नेमत, बरकत, मोहब्बत, खुशी, रूह खुश, नजात, जो भी बरकत मिली है, जो भी बख्शिश खुदा ने हम पर की है, उससे घर वाले फैज याब हों, इंजॉय करें, बरकत पाएं। फिर उसके बाद आदमी दूसरे जो हैं उनमें रोशनी हो। और कलाम में लिखा भी हुआ है कि जो अपने घर का ही बंदोबस्त नहीं करता, कलीसिया का कैसे करेगा। घर में रोशनी, घर में चमक पैदा हो। किसी ने कहा कि अगर शौहर की मैं चमक साथ लगा देता हूं मुहावरे के, ताकि आपको याद रहे। शौहर की चमक के बारे में जानना है तो किससे पूछें जी?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ बीवी ਨੂੰ पूछो। अगर किसी ने बीवी की चमक को भी कैसी है, रवैया कैसा है, घर में कैसी है, तो फिर किससे पूछें जी? हाँ से पूछो। अगर बहू की चमक को पूछना है कैसी है तो किससे पूछे जी? सासू नूं पूछो या जनाब एक घंटा लगेगा सिफतां करन तू। अगर सास का पूछना है तो किससे पूछें जी? शाबाश। और बहू भी 1 घंटा तारीफ कर देगी। हमारी चमक ईमानदारों की घर से शुरू हो। घर में चमक हो, घर में मोहब्बत हो, घर में खुशी हो, घर में इत्मीनान हो, घर में खुदा की बरकत हो, यूनिटी हो, मोहब्बत हो, चमक पैदा हो। ना के बाहर चमक दिखाते रहें और घर में अंधेरा हो। मुहावरा भी है, चिराग तले घर कोई खुदा दी कोई खुशी ना बरकत, एवं बैठे रहणगे मुंह बना के तानू की होया ते बाहर लुडियां पांदे फिरनगे। खिदमत करने वाले भी, वर्ष पर भी, और भी दूसरे भी लुडियां पा पा के इंज इंज चंप करते ने ते घर ऐसे ठंडे हो के बहते ने। कहते ने हाथ ना लाना नहीं तो फट जावांगे। असी बड़े हलीम हुन्ने हैं। अगर घर में चमक नहीं, घर में खुशी नहीं, घर में रोशनी नहीं, घर वालों को फायदा नहीं हो रहा, तो उसी चमक का कोई है फायदा फिर? है घर में चमके। और फिर क्या लिखा है आगे? ताकि फिर दूसरा स्टेप भी है, ताकि आदमी यानी अब दूसरे लोग क्या करेंगे? रोशनी देख के, ये मैंने अभी हवाला पढ़ा है, क्या करेंगे कि नेक काम देख के, ये रोशनी के काम देख के क्या करेंगे? तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, तमजीद करेंगे। बाहर हमारी रोशनी घर में भी चमके, बाहर दुनिया में भी चमके, ताकि खुदा को जलाल मिले, ताकि वो नेक काम देख करके आसमानी बाप को जलाल दें। हमारी रासबाजी के कामों को देख के, हमारे नेक कामों को देख के, हमारे नेक अमाल को देख के आसमानी बाप की तारीफ करें, ना कि उसकी बदनामी हो। इसलिए खुदा ने हमें चुना है, इसलिए उसने हमें दुल्हन बनाया है, इसलिए उसने हमें नेमतें दी हैं, इसलिए उसने हमें बख्शिशें दी हैं, इसलिए उसने हमें सरफराजी दी है कि हम नदामत का सबब ना बने बल्कि खुदा के जलाल का सबब बने। हालेलुया। हमारी रोशनी से, हमारी चमक से, हमारी नेमतों से, हमारी बरकतों से हमारे आसमानी बाप को जलाल मिले। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रोशनी के हथियार हम क्या करें? बांध लें। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। रोमियों का खत निकालें और देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रोमियो 13वां बाब और उसकी
12वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। तारीकी के कामों को हमने क्या करना है? तर्क करना है। और तरीके के कामों को तर्क करके कौन से हथियार पकड़ने हैं? रोशनी के हथियार, जिनसे रोशनी हो, जिनसे चमक हो, घर में रोशनी हो, बाहर रोशनी हो, आपके हाथों में रोशनी के हथियार हो और आपकी रोशनी और चमक को देख के आसमानी बाप का जलाल ज़ाहिर हो और आपकी रोशनी से दूसरे लोग भी रोशन होते चले जाएं। सो आए, जो दुल्हा ने वेडिंग रिंग दी है उसे क्या करें? जो नेमत दी है उसे क्या करें? जो बरकत दी है उसे क्या करें? चमकाएं, रोशनी उसमें आए। ये कलीसिया का, दुल्हन का फर्ज है। ये पॉलिश आप करें। पौलुस रसूल ने कहा तीमुथियुस को कि जो नेमत मेरे हाथ रखने से तुझे, उसी को क्या कर चमका। ये हमारा फर्ज है। और आखिरी बात फिर ये भी कह देता हूं कि जो नेमत मिली है उसको चमका। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे पास नेमत कौन सी है। खुदा ने मुझे खिदमत को लिखा, तरह तरह की क्या है और तरह तरह की क्या है, ये बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो जो नेमत मिली है, जो खिदमत मिली है, जो गिफ्ट मिला है, जो तोड़ा मिला है, उसी ही को क्या करें। इन्हें जेड़े गिफ्ट नहीं भी मिले उन्हें चमकाते रहो, उन्हें चमकना ही नहीं। चमकेगी भी वो नेमत जो खुदा ने आपको दी है, या फिर जो दूसरों की नेमत है। कुछ लोग उसको चमकाते रहते हैं, उन्हें पॉलिश करते रहते हैं, उन्होंने को जा के पॉलिश करते रहते हैं। चल भी असी तानू पॉलिश करने। लेकिन अपनी नेमत को क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि हमें नेमत कौन सी मिली है। किसी ने पूछो तानू नेमत क्या, सानू नहीं पता। सारियां नेमत ही साड़ियां ने, भावें ना चमके है साड़ियां ने। हमें जाने कि आपको कौन सी खिदमत, तरह तरह की खिदमतें हैं कि नहीं। बाइबल में लिखा है किसी को दुआ करने की, किसी को खैरात करने की, किसी को नसीहत करने की, किसी को तालीम देने की, लिखा हुआ है कि नहीं। फिर खुदा रोमियो के खाती में पौलुस उसमें मिसाल देता है कि बदन बेशक एक है लेकिन अज़ा क्या हैं, मुख्तलिफ है। और हर एक अज़ा का काम क्या है? हाँ, ये नहीं कि एक ही अज़ा का एक काम है। ये हाथ का काम फर्क है, मुंह का काम फर्क है, कान का, आंखों का है ना फर्क, लेकिन बदन क्या है। तो हम सब ने मिल मिला के क्या करना है? देखना है कि हमारा इस बदन में फंक्शन क्या है। हमारा इस जो कलीसियाई बदन है, इसमें हमारा फंक्शन कौन सा है। ये ना कहो कि जरा दूसरे का फंक्शन ओ ही सानों मिले। पता नहीं आपको खुदा ने उंगली बनाया, लेकिन उंगली के बगैर भी हाथ है कोई, खूबसूरती है कोई? ना। अगर आप कह लें कि चलो जी जानते हैं, पैर ही बना देता है खुदा ने। अगर पैर चले ना तो बाकी बदन चलेगा? चलेगा? आपकी बड़ी अहमियत है। हर एक अज़ा की अपनी क्या है? अहमियत है। हर एक नेमत की अपनी क्या है? अहमियत है।
हर एक बख्शिश की अपनी क्या है, अहमियत है। और जाने जो मुझे नेमत बख्शिश मिल गई है, हमने उनको क्या करना है, चमकाना है। और खुदा का क्या ज़ाहिर करना है, जलाल ज़ाहिर करना है। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं और आप उस नेमत को पॉलिश करें जो यीशु मसीह ने बख्श दी है। हालेलुया, जो यीशु मसीह ने हमें दी है। चमकाएं। गॉड ब्लेस यू।